This call is now muted. Okay, today now we're going to talk about resistance. ठीक है ना? This is another quantity linked with current electricity. अच्छा, as of resistance, जहाँ तक बात है resistance की, so we're going to understand the concept of resistance in a very simple way. Although there is uh, far more details related to this quantity and in fact the concept of resistance, but within your scope of curriculum, we are going to uh, we're going to learn about resistance in a very simple way. We're going to understand the concept of resistance very very simple way. You're going to be given you'll be given a little bit of insight of the concept of resistance in A levels, but in in O levels we're going to be we're going to keep things very simple. ठीक है ना? तो अब मैं डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है एज वर्ड सजेस्ट. It's a ratio of voltage टू करंट. अच्छा, मैं आप लोगों को फिर दोबारा बता रहा हूँ. मतलब ओ लेवल्स में ना ये बताना पड़ता है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई कांट गिव यू द बैकग्राउंड. अभी एट दिस लेवल मैं आपको ये जो क्वांटिटी रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसके बैकग्राउंड नहीं दे सकता. ठीक है ना? और एज अ वर्ड इसकी जो लिटरल मीनिंग है रेजिस्टेंस दैट इज बेसिकली द हिंड्रेंस which actually every component offers. जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं दे ऑल हैव रेजिस्टेंस, दे ऑल ऑफर रेजिस्टेंस. सही है ना? याद रखिएगा. और जैसे कि जैसे कि क्या कहते हैं मास होता है ना, एवरी बॉडी दैट हैज अ मास एज इनर्शिया वो एक प्रॉपर्टी है. सो और इट every body that has a mass offers some reluctance to change in its motion. So similarly, each and every electrical component offers resistance when a charge flows through it. ठीक है ना? अच्छा, what actually defines resistance is something I'm going to discuss about it a little later. But as of now, what I have written down, the definition is um it's it's just that what I have done is there's an equation that links resistance with voltage and current. So what I've done is that I've just written down that equation in words as a definition of resistance. So it's not actually the way how we define resistance. We define it in a more comprehensive. There's a comprehensive definition of the term resistance. But of course, that's something I cannot share it with you. I cannot discuss with you. We're going to be uh, taught about that in A levels, but in O levels, we are going to stick to resistance as a ratio of voltage and current. And also, let me tell you one thing that resistance is not a single quantity.
It's actually a combination of multiple quantities, or you may say resistance offered by an electrical component depends on uh, many couple of other quantities that we shall going to discuss very soon. All right. So over here, the resistance is defined as ratio of voltage to current. All right. So as per mathematics, I'm going to write down R as equal to V over I. That is, as per the definition which I have written, the mathematical equation for R is V over I. All right. And as per the equation, the unit for resistance must be volts per ampere. But this is actually equivalent to what we call as ohms. उसका जो symbol है ना वो ये है. That is the SI. That's the unit for resistance that we write. That's named after the physicist who worked upon the idea of resistance. Ohms इसका unit है. इसका जो symbol है वही है unit का. ठीक हो गई बात. तो ये आपने याद रखना है. तो कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जैसे लैंप है, तो लैंप आपका है, उसमें आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट फ्लो करा रहे हैं. तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट अगर आप फ्लो करा रहे हैं, तो उसकी वजह से इसके अक्रॉस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी होंगी. ठीक है ना. आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट अगर फ्लो करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके इस लैम्प के अक्रॉस पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी होंगी. वो क्यों? क्योंकि अगर लेट सपोज आपका करंट 2 एम्पेयर है, अब 3 एम्पेयर हो गया, तो पहले 1 सेकंड में 2 कूलम, आप 3 कूलम, 3 कूलम मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टोटल एनर्जी आपका जो है यही करा. ठीक है ना. तो आपका जो है v की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. आई आपने चेंज किया, ऑटोमेटिकली आपकी v जो है चेंज हो जाएगी. अब व्हाट इज रेजिस्टेंस इज एक्चुअली, अच्छा ये लेट मी मेंशन दिस, दैट ये जो आपकी एनर्जी कन्वर्जन होती है ना, दैट इज ऑल ड्यू टू द रेजिस्टेंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, आप कार ड्राइव कर रही हैं, तो यू नो देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड. जो टायर्स एंड रोड है, उनके बीच, उनके दरमियान क्या होती है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है. जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपकी जो है जो फ्रिक्शन फोर्स है, दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू मोशन. और उससे ये होता है कि जो गाड़ी की एनर्जी है, दैट सम ऑफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. आपको पता है टायर गर्म होता है, दैट मीन्स कि उसकी जो कुछ एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल हीट एनर्जी में. इसी तरीके से दिस व्हाट एक्चुअली हैपेंस अक्रॉस एवरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इवन द वायर्स एज वेल, कि जब आपका चार्ज में से फ्लो करता है, सो इट ऑफर्स हिंड्रेंस. ईच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफर्स हिंड्रेंस. दैट हिंड्रेंस एक्चुअली makes the energy of the charge gets converted into other forms. अगर लैंप के थ्रू गुजर रहा है तो लाइट में कन्वर्ट हो रही है, वायर्स के थ्रू गुजर रहा है थर्मल में हो रही है, मोटर के गुजर रहा है तो काइनेटिक में हो रही है. ठीक है ना. तो इट्स बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस दैट द एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस अक्रॉस एनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. अब होता ये है कि मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि ये जो आपका एमीटर होता है, इस एमीटर को डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि इसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो, बिल्कुल लो हो, बिल्कुल ना होने के बराबर हो. ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल ज़ीरो हो, लेकिन ये है कि इट इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज केप्ट मिनिमम और लीस्ट, सो दैट कि इसके अक्रॉस कोई एनर्जी कन्वर्जन ना हो. समझ आएगी बात. इस वजह से आपका जो है यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन नहीं होती. और वोल्ट मीटर को डिज़ाइन ऐसे किया जाता है सच दैट इट हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस. मतलब उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ऐसे कि इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो. मैक्सिमम होने से क्या होगा कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना,
तो याद रखना, ये आगे चल के आप सीखेंगे भी पैरेलल सर्किट्स के अंदर, जहाँ करंट डिवाइड हो जाता है, ये जंक्शन है ना, यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा। तो करंट जो डिवाइड होता है ना, वो होता ही अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंसेस है। तो जिस जिस रूट पे आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर कम करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे अगर करंट डिवाइड हो रहा है लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सो ऑफ कोर्स देन देयर वोंट बी एनी करंट फ्लोइंग। और हालांकि मैं नहीं कह सकता कि जीरो करंट फ्लो हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो वो निग्लेजिबल है, उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, ज़्यादा आपका सारा का सारा ऑलमोस्ट लैम्प के थ्रू फ्लो हो रहा है। इज दैट क्लियर? जो कुछ सवालात मैंने मेंशन किए थे उनके जवाब मैंने आपको दे दिए, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? अच्छा, तो अब होता ये है कि मैं आपको बता था कि ये एक लैंप है, इसके थ्रू आपका जो है ना वो करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट वेरी करेंगे तो उसके अक्रॉस एनर्जी कन्वर्जन है, उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो यानी वी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो आपका फॉर एनी वैल्यू ऑफ वी को, फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई, तो उसका रेशियो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और उस रेशियो को हम बेसिकली रेजिस्टेंस कहते हैं। अब एक सवाल ये है कि क्या हर कंपोनेंट के अगेंस्ट ये रेशियो कांस्टेंट रहता है? जवाब इसका है कि नहीं। कुछ ऐसे आपके कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कह लें कि आपका ये जो रेशियो है अक्रॉस देम, ये जो रेशियो है आपका वो कांस्टेंट रहता है फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ आई, यानी आई की काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी कांस्टेंट रहता है। अच्छा, कुछ ऐसे आपके मटेरियल्स हैं जो कि कंपोनेंट्स में यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके जो है ये रेशियो आपका जो है ना फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आई तक तो रहता है कांस्टेंट, फिर जब बढ़ने ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर आपका जो है ना ये कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो फिर तो रेशियो आपका रहता ही नहीं। एक वक्त आएगा करंट की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि आपका रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं फॉर विच लार्ज वैल्यूज ऑफ आई के लिए भी आपका ये रेशियो कांस्टेंट रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आई तक ही इनका रेशियो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, फॉर दोज मटेरियल्स जिनके लिए आपका ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है फॉर रिलेटिवली लार्ज वैल्यूज ऑफ आई, वो मटेरियल्स आपके कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। क्या कहलाते हैं? भाई आखिरी बात है, फिर हम करते हैं। तो मटेरियल्स or I should better write down the components for which this ratio of V and I remains constant for relatively large values of I,
they are called as ohms, and they also obey Ohm's law. Ohm's law क्या होता है, ये तो हम आगे डिस्कस करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं मटेरियल्स जो कि आपका जो है उनका रेशियो ये वाला सिर्फ कांस्टेंट रहता है फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ आई, तो वो फिर ओमिक कंडक्टर्स नहीं कराते और वो ओम्स लॉ भी नहीं करते. हमारी जो डिस्कशन हुई थी रिगार्डिंग रेजिस्टेंस, दैट वाज कि इट्स अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट. मैथमेटिकली the equation for resistance is R equals to V over I. The unit है that is वोल्ट पर एम्पेयर एंड दैट इज इक्वल टू ओम्स. उसका जो सिंबल है वही है. ठीक है ना. फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इन अ सर्किट, जैसे कि ये सिंपल सर्किट है आपका, आप इसके अंदर अगर रेजिस्टर ऐड करते जाएंगे सो जो करंट है वो डिक्रीज होते जाएगा. ठीक है ना. करंट जो है आपका वो डिक्रीज, द मोर यू ऐड अप रेजिस्टेंस इन अ सर्किट द करंट रिड्यूसेस. जो आपका ओवर पूरे थ्रू द सर्किट जो आपका टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपका रिड्यूस हो जाता है. एंड एज अ नेम सजेस्ट, क्योंकि यू नो, अच्छा, नॉट नेसेसरीली कि व्हेन यू ऐड अप अ फिक्स रेजिस्टर ओनली देन इट हैपेंस. नो, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐड करते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं, बी इट lamp or a fixed resistor or any other electrical component, because all of these offer resistance. ठीक है ना. तो जितनी आप ऐड अप करते जाते हैं रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, तो आपका जो ओवरऑल जो करंट फ्लो हो रहा होता है सर्किट में वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है ना. और मैंने आपको यही बताया था कि एज फॉर रेजिस्टेंस व्हाट हैपेंस कि आप अगर लेट सपोज ये एक फिक्स रेजिस्टर है, व्हाट यू कैन, आप इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उसको वेरी कर रहे हैं. ठीक है ना. तो अब हाउ आर यू वेरिंग, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है, सेपरेट डिस्कशन कि हम करंट कैसे वेरी करें. अभी हम डिस्कशन ये करें करंट वेरी हो रहा है अक्रॉस दिस रजिस्टर. व्हाट्स गोना हैपन कि जब आपका करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, तो अगर करंट चेंज हो रहा है, सो व्हाट्स गोना हैपन कि इसके अक्रॉस जो आपकी जो पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी चेंज होगा जाहिर सी बात. ठीक है ना. इसके अक्रॉस जो पीडी है आपका वो भी चेंज होगा, क्योंकि उसके अक्रॉस, इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, इसके अक्रॉस जो पीडी है वो भी चेंज होगा. Now what you can do that for different values of I, you will have different values of V across this fixed resistor. You can do the you may do the same thing across a lamp. You may do a same thing across a diode. You may do the same thing across a, you may do this thing across a fixed resistor, a lamp, or a diode, or you're gonna have a different pattern of values for I and V. ठीक है. Well, what I'm doing right now is I'm doing it right now across a fixed resistor. What I'm doing is I'm varying current and I'm recording the different values of the PD across it. Then I'll do the same thing across the lamp, and then I'll do the same thing across a diode. And why I'm gonna do so is because that will give me a different set of values for I and V. मेरे पास जो पैटर्न आएगा ना, पैटर्न फॉर वैल्यूज ऑफ I and V across each of these conductors, ये तीनों कंडक्टर्स ही कहलाएंगे ना, because they are allowing the current to flow through them. So that is this is made up of
a semiconducting material, but still it's a conductor तो है fixed resistor तो है good conductor भी good conductor. So anyways, so these are all conductors, but जब मैं इन तीनों के अक्रॉस करंट वेरी कर रहा हूँ तो इनके अक्रॉस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीडी हैं, तो जो पैटर्न ऑफ वैल्यूज है ऑफ आई एंड वी वो आपका तीनों के अक्रॉस डिफरेंट है. लैम्प के अक्रॉस अलग है, फिक्स रेजिस्टर के अक्रॉस अलग है, डायोड के अक्रॉस अलग है. एंड व्हाट इज डिफरेंट अबाउट देम इज, जो कि मैंने आपको बताया था कि अक्रॉस अ फिक्स रेजिस्टर which is made up of metal like copper for example, so आपका जो पैटर्न ऑफ वैल्यूज होगा ऑफ आई एंड वी दैट विल बी सच दैट कि जो रेशियो है ना आपका वी ओवर आई दैट इज गोना रिमेन कांस्टेंट. यानी जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल करंट 2 एम्पेयर है और पीडी आ रहा है 4, तो वी ओवर आई रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा. वी ओवर आई का जो रेशियो क्या 2. अगर करंट इंक्रीज हो गया 3 तो पीडी हो जाएगा 6, आई हो गया इंक्रीज हो गया 4 तो हो जाएगा 8, सच दैट कि आपका जो रेशियो है ऑफ वी एंड आई वैल्यू आपका वी ओवर आई की वो आपकी दैट विल रिमेन कांस्टेंट रहेगी. दैट विल बी अप टू अ लार्ज वैल्यू ऑफ आई. रेशियो की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी फॉर अप टू लार्ज वैल्यू ऑफ आई, बट दिस इज नॉट हैपन नॉट ऑल काइंड्स ऑफ कंडक्टर्स. सो दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर. अगर आपके सपोज आई की वैल्यू 2 है, चलो इनिशियली तो ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट है. फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आई रेशियो आपका कांस्टेंट है, बट अगर जैसे जैसे अब आई की वैल्यू बढ़ रही है तो अब रेशियो आपका कांस्टेंट नहीं है, 9 हो गया. ठीक है, ये आपका 5 है तो ये 11.5 हो गया. तो अब आपका रेशियो जो है कांस्टेंट नहीं है बल्कि रेशियो की वैल्यू बढ़ रही है. दिस आल्सो हैपेंस कि रेशियो आपका कांस्टेंट नहीं रहता. फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज होता है, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ आई आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वी हैं दे आर सच दैट कि जो रेशियो है आपका वी ओवर आई वो कांस्टेंट नहीं रहता. एंड सो फॉर व्हाट फॉर विच एवर कंडक्टर्स you know this is valid, that is the ratio of V and I is not constant, so such conductors are called as non-ohmic conductors. और ये जो रेशियो है आपका V over I that is basically resistance. So you say that for those conductors for which ठीक है ना, for those conductors for which the resistance is constant for higher values of I, then those are called as ohmic conductors. And for which the resistance is not constant for higher values of I, then they are called as non-ohmic conductors. तो हम वो कहते हैं कि for non-ohmic conductors आपकी जो resistance है यानी जो रेशियो है आपका वोल्टेज एंड करंट V over I वो आपका चेंज हो रहा है. और ये जो आपका with the current जो आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होता है that is due to basically temperature. कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अगर उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती तो देन व्हाट हैपेंस के उनका जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता, इस वजह से रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता. ठीक है ना, करंट आपका बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है, फिर आपका वो रेशियो कांस्टेंट नहीं रहता. और इनफैक्ट दिस हैपेंस कि आपका जो जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं लाइक लैम्प, दे हैव अ कंडक्टर कॉल्ड एज अ फिलामेंट, and that is made of low heat capacity material. मतलब वो कंडक्टर तो होता है बट इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो लो होती है. देयरफॉर जब करंट आपका फ्लो करता है फिलामेंट के थ्रू इन अ लैम्प तो इट गेट्स हीट अप,
टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जो आपका जो रेशियो है वोल्टेज एंड करंट वी ओवर आई, वो आपका कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस आपकी फिर चेंज हो जाती है, इनफैक्ट वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, दिस हैपेंस नाउ। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो ये मैंने आपके साथ लास्ट में ये बात डिस्कस करी थी, मैंने यहाँ पे लिखी भी थी। नाउ लेट मी राइट डाउन अ फॉर्मल डेफिनेशन फॉर ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? क्या होता है भाई ओम्स लॉ? एक मिनट में आपको ना इसकी, सो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ सेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, what does Ohm's law says? It says that current flowing uh, is directly proportional to the PD, potential difference across it, provided the temperature remains constant. ठीक है, बात फॉर्मल डेफिनेशन। सो और जो आपके कंडक्टर्स मटेरियल्स बिहेव करते हैं ओम्स लॉ को, फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, दे आर कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर्स। की मिसाल ये फिक्स रजिस्टर है, इट्स मेड आउट ऑफ अ मटेरियल जो कि ओम्स लॉ ओबे करता है। ठीक है ना, इवन हायर वैल्यूज ऑफ आई उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, इसकी वजह से रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, रेशियो कांस्टेंट। ठीक हो गई बात? आ जाए देन जो यहाँ पे मेरी जो एप्पल पेंसिल है ना, थोड़ी चार्ज हो रही है, गिव इट अ मिनट, ये चार्ज हो जाए। अच्छा, अभी मैं आई एम गोना राइट डाउन के हाउ व्हाट इज अ रिलेशनशिप, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपका कोई कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे कर रहा है तो बी और आई के दरमियान रिलेशनशिप डायरेक्ट होती है। ठीक है ना, तो now I need to show you the graph as well. How does the graph looks like of V versus I for any conductor that obeys Ohm's law? So that's a straight line. वही straight line होती है, मैं आपको show कर देता हूँ। Let it get charged a little bit. थोड़ी सी और charge होने दें, फिर मैं आपको explain। Here's the relationship. ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वोल्टेज है पर वोल्ट पीडी, करंट है इन एम्पियर्स, करंट है इन एम्पियर्स, और यहाँ वोल्टेज है इन वोल्ट्स। You may come across two types of graphs. The graph may be a V versus I graph, or it may be a I versus V graph.
अच्छा, barrel for any conductor that obey Ohm's law. So जो आपका जो ग्राफ है, be it a V versus I graph or I versus V graph, so it's going to be a straight line. ठीक है ना, वो एक straight line होती है जिससे वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन. कोई अगर कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे कर रहा है और आप उसकी जो रिलेशनशिप है बिटवीन वी एंड आई, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ऑन अ ग्राफ, so be it a V versus I graph or I versus V graph, so the graph is going to be a straight line. ठीक है ना. So there is a linear relationship between V and I. अगर कोई आपका कंडक्टर ओबे करता है ओम्स लॉ, so there is a relationship, there is a linear relationship between V and I. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, बट what do you mean by directly proportional is, अगर मैं इसको थोड़ा explain करूँ in detail, so it actually means कि there is a linear relationship between V and I. आपकी जो विद वैल्यूज ऑफ आई, जो जैसे आपकी वैल्यूज ऑफ आई इंक्रीज हो रही हैं, आपकी वैल्यूज ऑफ वी भी इंक्रीज हो रही हैं, बट अलॉन्ग साइड दैट आपकी जो वी और आई है वो दे हैव अ लीनियर रिलेशनशिप. क्योंकि देखो, अगर मैं इफ द ग्राफ वुड हैव बीन ऑफ दिस शेप और दिस शेप, सो फॉर दीज टू ग्राफ्स एज वेल, आपकी जो रिलेशनशिप है बिटवीन वी एंड आई, दैट इज सच दैट के एज आई इज इंक्रीजिंग वी इज इंक्रीजिंग. ठीक है ना. अगर ग्राफ आपका ऐसे है या ऐसे है, सो फॉर दिस ग्राफ आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर दिस ग्राफ एज वेल आपकी जो रिलेशनशिप है वी और आई के दरमियान, दैट इज सच दैट कि आपकी जैसे आई बढ़ रहा है वी भी बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है वी भी बढ़ रहा है, फॉर बोथ ऑफ दीज ग्राफ्स. बट फॉर दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, अगर आपका जो ग्राफ है वी वर्सेज आई वर्सेज वी, दैट इज अ कर्व लाइक दिस. So this kind of relationship is not called as directly proportional. फिर हम ये नहीं कहते कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हाँ, the relationship is such that as I is increasing, so V is increasing. But we don't call it as a direct relationship. We don't call that, we don't say that V and I are directly proportional. If the graph would have been like this or this. तो बात सही है कि I बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है, but you know this doesn't tell that this tells कि आपके जो V और I हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है ना. और टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक कंडीशन ये है कि एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़े, लेकिन देयर मस्ट बी अ सेकंड कंडीशन, देयर इज अ सेकंड कंडीशन एज वेल दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड, एंड दैट इज कि उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लीनियर हो. जब ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती है ना, देन वी से कि आपके दो वेरिएबल्स जो है ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो नाउ for fixed resistor the graph of V versus I or I versus V, it's a straight line. यानी ये दो आपके फिक्स रेजिस्टर्स हैं जिनकी अलग अलग रेजिस्टेंस है, और इन फॉर यू कैन सी फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ आई, ये जो आपकी रिलेशनशिप है बिटवीन वी एंड आई एक लीनियर रिलेशनशिप है. द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. और इनफैक्ट जैसे जैसे आई बढ़ रहा है आपकी वैल्यूज ऑफ आई बढ़ रही है, वी भी बढ़ रहा है. ठीक है ना. अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि देखें, एक बात याद रखिएगा कि देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ग्राफ, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ग्रेडियंट. क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं. यू मस्ट बी प्रीटी अवेयर ऑफ इट. इस प्रॉपर्टी से आप फेमिलियर होंगे, आपने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक है उसमें पढ़ा होगा ग्रेडियंट का. इवन इन काइनेमैटिक्स आपको ये बात बताई गई. यू मस्ट हैव come across this word gradient in while studying speed time graphs and distance time graphs. ठीक है. So you are familiar with this the term gradient. So gradient is a ratio of what you have on the y-axis. All right, what you have on the y-axis upon what you have on the x-axis. So if you have a graph of v versus I,
So for this graph, going to be V over I, and that is equal to resistance. The rate is equivalent to I over V, is not equal to resistance. In fact, it's equivalent to the reciprocal of resistance, 1 over R. So now what happens is, basically, this R, ये जो ग्राफ है of I versus V, this is for the same resistors, ये same resistors के लिए, but थोड़ा सा ग्राफ में चेंज है. Now you have R2 and R1. अब यहाँ पे जो R2 का ग्राफ है, that is more steeper than R1. बट जो रिलेशनशिप है R1 और R2 की वो सेम ही रहेगी. R1 is still greater than R2, जो कि हमने पहले डिटरमिन किया था. लेकिन यहाँ पे R1 का जो ग्राफ है, that is less steeper than R2. Because over here, यहाँ पे जो gradient है, that is equivalent to 1 over R. So the greater the value of resistance, the smaller the value of gradient will be. तो जितनी आप denominator की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उतनी fraction की वैल्यू कम हो जाएगी. So if this graph of R1 has a smaller gradient, that means the value of R1 must be greater than the value of R2. ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है, मतलब don't get confused. You may come across graphs of V versus I and I versus V both, so you need to be very careful. All right, थोड़ा सा आपने इस चीज का ध्यान रखना. और there's another way to remember is कि आपका ग्राफ जितना V एक्सिस से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, the graph closer to V axis has more resistance. ठीक है ना, जितना आपका ग्राफ V एक्सिस से करीब होगा, दैट शोज कि आपके उस यानी दैट शोज कि आपके उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा है. ठीक है ना, तो यहाँ ये आपका R1 जो है, दैट इज क्लोजर टू V एक्सिस. सो ओवर हियर आपकी जो दिस टेल्स कि आपका जो R1 है रेजिस्टर, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है. और यहाँ पे अगेन ये जो ग्राफ है R1, दैट इज क्लोजर टू V एक्सिस. So again, this tells that कि आपका जो यहाँ resistance है of the resistor R1, that is greater than that of R2. ये बात clear हो गई है? Is that clear? अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और mention कर दूँ कि let's take this as I1. Let's take one value of PDV. मैंने एक particular value ले ली. Now over here, for this particular value of V, all right, you are over here you are getting this particular value of V across R1 for a smaller value of I. Well, I'm just what I'm taking is the same value of V across both resistors R1 and R2.
यानी लेट्स अज्यूम कि आपकी दोनों जो आपके रजिस्टर्स हैं R1 और R2, इनकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V। तो अगर ये if you are having this potential difference across any resistor for a smaller value of current compared to the other one, यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रजिस्टर के अक्रॉस है, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 के अक्रॉस है दैट इज अगेंस्ट स्मॉलर वैल्यू ऑफ I, देन what you have current flowing through R2। मतलब R2 के अंदर वही पोटेंशियल डिफरेंस है बट अक्रॉस इट लार्जर करंट इज फ्लोइंग देन व्हाट इज फ्लोइंग थ्रू R1। तो यहाँ पे जो है रेशियो आपका ज्यादा होगा। रेशियो क्या होता है? V ओवर I होता है ना, V ओवर I होता है। तो अगर V दोनों का सेम है तो V तो चले सेम है, न्यूमरेटर सेम हो गया, बट अगर करंट की वैल्यूज डिफरेंट है तो जहां आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल होगी तो यू कैन हैव अ ग्रेटर लार्जर वैल्यू फॉर द रेशियो, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा देन कंपेयर टू कि अगर आपकी आई की वैल्यू ज़्यादा है तो यू कैन हैव अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, देयर आर मैंने ज़रा मल्टीपल वेज आप लोगों को बता दिए हैं हाउ यू कैन परसीव दिस ग्राफ, यानी ये जो आपको ग्राफ गिवन है, हाउ यू कैन परसीव दिस ग्राफ, how you can fetch information from this graph। ठीक है ना? अच्छा, then comes up, मैं आपको बताता हूँ फॉर नॉन ओमिक। ये तो मैंने आपको बताया ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ऑफ I वर्सेस V और V वर्सेस I, दैट इज फॉर एन ओमिक कंडक्टर, जिसकी एग्जांपल जो है वो फिक्स रेजिस्टर है। अगर कोई आपका कंडक्टर नॉन ओमिक है, फॉर एग्जांपल अ फिलामेंट लैंप, ये जो लैंप होता है, जो लैंप होता है ना, इसमें जो आपका एलिमेंट होता है ना, हीटिंग एलिमेंट, वी कॉल दिस एज फिलामेंट। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं of V versus I, so how it's going to look like? So it's an example of a non-ohmic conductor। उसका जो ग्राफ है ना, it's going to look like this। Sorry, this is over here for I versus V। मैं इसको ये ऐसे, this is V per volt, I per ampere, over here I per ampere and V per volt। All right, have a look at this। So this is a graph for filament lamp। मैं यहाँ पे इसको लिख भी दूंगा। ठीक है, and this is for fixed resistor। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपका जो है ये ओमिक कंडक्टर जो है वो सिर्फ फिक्स रेजिस्टर है, और भी होता है, बट मैंने आपको यहाँ एग्जांपल जो स्टेट की है वो फिक्स रेजिस्टर की, जो कि है ऑफ, जो कि एक ओमिक कंडक्टर। एनीवेज, अच्छा, नाउ हैव अ लुक एट दिस फॉर फिलामेंट लैंप। इस ग्राफ के हवाले से एक पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एज द फिलामेंट हीट्स अप, जैसे जैसे उससे करंट फ्लो होता जाता है ना, अब इट्स मेड आउट ऑफ अ मटेरियल जिसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है, तो दैट्स वाई इसका टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट नहीं रहता। थोड़ी सी भी करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू होती है ना, तो फिर आपका जो है ना वो फिलामेंट स्टार्ट्स टू हीट अप होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही हीट अप होता है ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। एज अ फिलामेंट हीट्स अप,
and its temperature rises, there is less increase in current. Oh, sorry, temperature rises. एक point लिखना भूल गया. Its resistance increases. ठीक है. Therefore, for the same increase in PD, there is less increase in current. ठीक हो, ये बात याद रखिए. तो अब जो जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, फिलामेंट हीट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा. अब क्या होगा कि जो करंट में चेंज आ रहा है ना, वो उतना ज़्यादा नहीं आएगा. पहले अगर इनिशियली आपकी करंट की वैल्यू 2 थी, पीडी की वैल्यू 4 थी, फिर 3 हुई, 6 हो गई. अब 4 पे ना आपकी जो है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द 4 पे आपका जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा. ठीक है ना. 2 पे आपकी 4 वोल्ट्स थी, 3 पे 6 थी. अब 4 पे 8 नहीं होगी, 9 हो जाएगी. दैट मीन्स कि अब जो है ना आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, यानी एनर्जी कन्वर्जन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रही है ना, तो एनर्जी कन्वर्जन अब ज़्यादा होगी. अब वो प्रोपोर्शनल नहीं है, इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और दैट मीन्स के देयर इज नो मोर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई. एंड व्हाट हैपेंस कि आपका जो ग्राफ है ना, वो बेसिकली वोल्टेज एक्सिस की तरफ टर्न होता है, बेंड होता है, वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड होता है ऐसे. और if this is a I versus V graph, so it's going to look like this. It's going to bend towards voltage axis. ठीक है ना. ये याद रखिए. अच्छा, देखो यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व है ना, तो जो ग्रेडियंट है आपका वो चेंज हो रहा है. आई नो कि यहाँ पे ग्रेडियंट चेंज ही हो रहा है ना, दैट सी बात है. रेजिस्टेंस चेंज होने का मतलब क्या है कि जो आपका ग्रेडियंट है ऑफ दीज टू ग्राफ्स वो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है. अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट होता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता, तो फिर आपका ग्रेडियंट भी कांस्टेंट रहता, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती. बट यहाँ पे आपका कर्व है, इसका मतलब ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, यानी कि फिर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो कि हमारी डिस्कशन है. तो अब होता यह है कि फॉर अ कर्व आपका जो है एट एनी पॉइंट जो ग्रेडियंट है वो सेम नहीं होता, अलग अलग है. इस पॉइंट पे ग्रेडियंट अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है. सो फॉर दीज ग्राफ्स you will not be calculating the gradient. आप gradient calculate नहीं करते at this level, आप gradient calculate नहीं करते. मतलब अगर आपको at any point find out करना हो कि resistance क्या है, यानी कि at ये आपका I है, इसकी वैल्यू 2 एम्पियर्स है और यहाँ I है 3 एम्पियर्स. आपको फाइंड आउट करना है कि यार आपकी जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I यानी 2 एम्पियर्स पे रेजिस्टेंस क्या है. तो यू गोना लुक फॉर द वैल्यू ऑफ V अगेंस्ट 2 एम्पियर्स, जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, and then you are going to be
using these two values to calculate the value of R using the ratio V over I. ठीक है ना? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। वो ये कि जो आप इक्वेशन यूज करते हैं R इक्वल टू V ओवर I, या आप इसको रीअरेंज कर लें V इक्वल टू I, या व्हाटएवर इन व्हाटएवर वे यू राइट इज द सेम थिंग। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, actually for only ohmic conductors. At any point, ठीक है ना, आप ये काम नहीं करेंगे. So at any for any value of I, if you're going to if you want to calculate what is the resistance of the filament length, so you're going to look for the corresponding value of V, and you're going to take the ratio, and that is going to be a resistance. और वो रेजिस्टेंस पर आपकी वो रहेगी नहीं सेम, वो चेंज होगी. फॉर अनदर वैल्यू ऑफ I, there is going to be a different value of V, and so there is going to be a different value of resistance. ठीक है ना? But you will be using this equation. हम ये equation use करेंगे. V equals to IR जो यहाँ पे मैंने लिखी ना equation, ये जो equation है आपकी, you're going to be using it. हम इसको equation को use करेंगे. ठीक है? अच्छा, now पे जो है, जो आपके ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, फॉर दीज, अगर ये जो ग्राफ्स हैं V वर्सेस I, ये एक स्ट्रेट लाइन है. तो यहाँ पे यू मे कैलकुलेट द ग्रेडियंट एज वेल टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस. ठीक है ना? आप यहाँ ग्रेडियंट कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स द सेम फॉर ऑल वैल्यू, फॉर इट्स द सेम थ्रू आउट. मतलब आपका जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट. दैट्स व्हाई आप ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है? अच्छा, फिर देन वी हैव फॉर थर्मिस्टर. अब ये जो मैं आपको ग्राफ्स ड्रॉ कर रहा हूँ ना, दिस इज अनदर electrical component. Now I'm drawing it for thermistor. एक another electrical component है, और मैंने कहा ये बड़ा यूजफुल होता है because it is used in heat sensing circuits. और जो डिवाइसेस आपकी जिनमें हीट सेंसिंग सर्किट्स, जो आपके हीट सेंसर्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं जो कि यूज होती हैं एज हीट सेंसर्स, एग्जांपल ऑफ इट एज द एग्जांपल ऑफ इट इज अ थर्मोस्टेट. ऐसी डिवाइसेस जो कि एज हीट सेंसर्स यूज होती हैं, उनके जो इनसाइड इट जो सर्किट होता है उसमें आपका ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंस्टॉल्ड होता है, थर्मिस्टर. ठीक है ना? एंड अगेन इसके 3 ग्राफ्स हैं. थोड़ी सी मुझे एक मिनट, मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ. कॉपी पेस्ट. ऑलराइट, 3 ग्राफ्स हैं इसके. एक ग्राफ है आपका रेजिस्टेंस पर ओम वर्सेस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस. फिर दूसरा आपका है जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं, V पर वोल्टेज, I पर एम्पेयर, I वर्सेस V, I पर एम्पेयर एंड V पर वोल्ट. ठीक है, वही बात.
अच्छा, थर्मिस्टर के बारे में एक दो पॉइंट्स लिख देता हूँ. That is, it's a temperature dependent resistor. It's another name for it, temperature dependent resistor. जैसे फिक्स रजिस्टर होता है ना, वैसी है. वेरिएबल रजिस्टर है, फिक्स रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर ही है. But why it's been given a name thermistor, and in fact they also called as a temperature dependent resistor, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो टेम्परेचर के साथ वेरी होती है. और इसका सीन ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपकी फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ आई रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, फिर जैसे जैसे आई की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो टेम्परेचर बढ़ा. नहीं, दिस इज काइंड ऑफ अ रेजिस्टर which is totally temperature dependent. यानी for even small changes in temperature as well इसकी resistance change हो जाती है. और अगर आपको टेम्परेचर में थोड़ा स्मॉल चेंज भी आ रहा है ना, तो फिलामेंट जैसा आपका अगर मटेरियल है, कंडक्टर है, तो अगर टेम्परेचर में बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है तो उससे शायद रेजिस्टेंस इतनी सिग्निफिकेंटली चेंज ना हो. लेकिन थर्मिस्टर जो है ना, इट्स अ टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर. यानी कि इसमें अगर इसके अराउंड सराउंडिंग टेम्परेचर में अगर बहुत स्मॉल चेंज भी आता है ना टेम्परेचर में, तो इसकी रेजिस्टेंस इफेक्ट होती है, चेंज हो जाती है. और इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, guess what, it is opposite to it changes in an opposite way to how it changes in a filament. Its resistance is inversely proportional to temperature. That is what makes it stand out. मतलब हम फिलामेंट को एज टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर यूज नहीं कर सकते. टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर आपका यही है, एक थर्मिस्टर. थर्मिस्टर को ही हम एज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर यूज कर सकते कहते हैं. हालांकि फिलामेंट का भी यही मामला है कि टेम्परेचर चेंज होता है फॉर हायर वैल्यूज ऑफ करंट, रेजिस्टेंस चेंज होती है, लेकिन उसको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर नहीं कहते. इसको हम कहते हैं, उसकी दो वजह है. एक तो ये कि इवन फॉर स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर आपकी जो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है. सेकेंडली इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर राइज होगा तो इसकी रेजिस्टेंस विल गो डाउन. अगर टेम्परेचर सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग टेम्परेचर अगर फॉल होगा तो इसकी जो रेजिस्टेंस है इट्स गोइंग टू राइज. And that's what makes it useful to be used in heat sensing circuits. ठीक है. मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में. अभी आगे हम पढ़ेंगे ना तो उसमें बताऊंगा, तो भी ज़रा फिनिश कर लेंगे ग्राफ्स वगैरह. तो ये जो हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनमें बेसिकली थर्मोस्टेट इंस्टॉल्ड होता है. जो हीट सेंसिंग डिवाइस है उसके अंदर ये थर्मिस्टर होता है. तो क्या मामला होता है, कैसे. तो पहले तो एक पॉइंट लिख देता हूँ. अपॉन हीटिंग आपके एटम्स जो है ना, एटम्स ऑफ द थर्मिस्टर स्टार्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ये जो आपका थर्मिस्टर है दैट इज नॉट मेड आउट ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल. फिलामेंट लैम्प तो चलो एक कंडक्टिंग मटेरियल से, जैसे कॉपर है उसका बना होता है, या कॉपर नहीं, कोई और मटेरियल होता है जिसका बना हुआ होता है. फिक्स रेजिस्टर है दैट इज मेड आउट ऑफ अ वेरी गुड कंडक्टर लाइक कॉपर. ये जो थर्मिस्टर है ना दैट इज मेड आउट ऑफ अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल. सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स मल्टीपल होते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इस तरीके से. तो आपका थर्मिस्टर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है. अपॉन हीटिंग जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, एटम्स जो होते हैं थर्मिस्टर के दे स्टार्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स and number of electrons flowing in the circuit increase. तो अब अगर आपके टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रही है, दैट मीन्स कि फिर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से आपका फिर करंट जो फ्लो हो रहा है वो बढ़ जाएगा. सो द करंट इन द सर्किट
current in the circuit increases and thus resistance decreases. Oh, let me finish. Okay, I think screen sharing should be. Resistance. थर्मिस्टर ग्राफ। अब मैं आपको थर्मिस्टर के बारे में मैंने बताया था। थर्मिस्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको ज़रा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो कि हाउ डज इट वेरी। सो जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है टेम्परेचर की, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसकी वेरिएशन ऐसे होती है। ठीक होगी बात। जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आपकी जो रेजिस्टेंस है ना वो कम होती जाती है, और रेजिस्टेंस कम होती जाती है तो करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ जाता है तो आपकी फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चले कल तो मैं नहीं बता सका था कि जो आपका थर्मोस्टेट है ना, देखो आपने एसी चलाया, आपने उसका एक टेम्परेचर सेट कर दिया 27। थोड़ी देर के बाद आपके पूरे रूम का टेम्परेचर, अच्छा जब आप ऑन करते हैं ना तो उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कंप्रेसर कहते हैं। तो कंप्रेसर ऑन होता है। अच्छा, अब कंप्रेसर को ऑन करने के लिए एक लार्ज करंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना। अच्छा, वो ऑन हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इन्वर्टर का। अब जो पहले ट्रेडिशनल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स थे उनमें और इन्वर्टर में क्या फ़र्क है वो भी बताता हूँ। अच्छा, कि नॉलेज आपको मैं क्यों दे रहा हूँ कि यार आपको पता हो घर में एसी लगा होता है, हमें पता ही नहीं होता यार क्या है, हमें बस ये पता है कि यार ये ठंडा कर रहा है। तो बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम नॉलेज ऑफ थिंग्स अराउंड योरसेल्फ। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन मैं सिर्फ उतना कुछ बता रहा हूँ जो कि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन है कि आपने टर्न ऑन किया एसी, तो उसमें जो कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर कहाँ होता है, जो देखो दो यूनिट्स होते हैं इन्वर्टर के। एक जो होता है कमरे के अंदर लगता है, एक कमरे के बाहर होता है। जो कमरे के बाहर होता है वो बहुत भारी होता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर कंप्रेसर होता है। तो बहरहाल, अब वो कंप्रेसर जो है ना बेसिकली वो बेसिकली ठंडा करने का काम कर रहा होता है। वो कैसे करता है मैं वो नहीं डिस्कस कर रहा। तो अगर आप इंजीनियरिंग करती हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आगे आप पूरा उसका एक कोर्स होता है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में, वो आप पूरा स्टडी करते हैं। उसकी साइकिल होती है पूरी, किस तरीके से हवा की इनटेक हो रही है, कंप्रेसर वर्क कर रहा है और वो कूल एयर जो है ना वो रिलीज कर रहा है, सो ऑन। तो छोड़ दो उसको। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है बेसिकली कि आपने टर्न ऑन किया, कंप्रेसर टर्न ऑन हो गया। टर्न ऑन कंप्रेसर को टर्न ऑन करने के लिए एक लार्ज करंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे जो एसी जो हम कहते हैं ना कि यार इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उसकी एक वजह जो है ना वो ये होती है कि कंप्रेसर को टर्न ऑन करने के लिए जो है ना ज़रा ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप दिन में मल्टीपल टाइम्स उसको ऑन कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, फिर दोबारा ऑन कर रहे हैं, इस तरीके से, सो दैट एड्स अप टू दी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। हालांकि अभी सिर्फ ऑन ही किया है ना आपने, लेकिन उसकी वजह से एक लार्ज करंट फ्लो होता है। एनीवेज, अच्छा जब वो ऑन हो जाता है ना, वो बेसिकली काम कर रहा होता है एयर को कूल करने का। एयर बाहर से इनटेक की जाती है, तो बाहर आपका यूनिट होता है ना उसमें फैन भी लगा होता है, तो वो सक इन करता है एयर को, इनटेक करता है, और फिर अंदर जो है ना एयर कूल डाउन होती है। तो जो अंदर वाला जो यूनिट होता है ना उसमें से एयर पास होती है, तो वो कूल डाउन होती है। वो कैसी होती है छोड़ दें, और कूल डाउन होती है उसके बाद फिर वो रिलीज होती है कमरे में बाहर। अच्छा, आपका जो है ना क्या हुआ कि आपने टेम्परेचर सेट कर दिया। टेम्परेचर सेट करने के बाद हुआ ये कि आप नाउ अब यू नो
टेम्परेचर में चेंज आना शुरू हुआ ना। कंप्रेसर इज कंटिन्यूसली डूइंग वर्क एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो वो कूल कर रहा है एंड इट इज गोइंग टू एक्चुअली कंटिन्यू टू वर्क। कंप्रेसर कब तक काम करेगा? जब तक आपके पूरे रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री ना हो जाए। जब आपके पूरे रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री हो जाएगा ना, तो अब क्या होगा? तो जो ट्रेडिशनल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हुआ करते थे ना, विंडो एसी जिन्हें कहते हैं, तो उसमें क्या होता था, कंप्रेसर बंद हो जाता था, फिर दोबारा ऑन होता था। यानी कि अगर कोई दरवाजा खोल के अंदर आ गया तो टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, तो फिर वो दोबारा ऑन हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा होता कि वो जो ट्रेडिशनल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते थे वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते थे। उसकी वजह होती थी उसमें कंप्रेसर एक दफ़ा टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है। अब जो आपके ये इन्वर्टर सिस्टम्स होते हैं ना, इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, जो कि आपको पता होगा मेरे ख्याल से, तो बहरहाल इनका क्या है कि इसमें कंप्रेसर बिल्कुल बंद नहीं होता। इंटरेस्टिंगली बिल्कुल बंद नहीं होता, स्लो डाउन हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता। दैट्स वाई दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बार बार आपको ना कंप्रेसर को टर्न ऑन नहीं करना होगा, बार बार कंप्रेसर टर्न ऑफ होकर टर्न ऑन नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ी सी सेविंग होती है। अच्छा, दूसरी ये कि अब मैं जो बेसिकली बात बताना चाह रहा हूँ, ये सब तो आपकी नॉलेज के लिए था। अब मैं आ जाता थर्मिस्टर की। देखिए, आपका टेम्परेचर ऑफ द रूम सेट हो गया 27 पे, मेंटेन हो गया, आपका कंप्रेसर ने जो है वर्क करना बंद कर दिया, बहुत स्लो डाउन हो गया। अब क्या होगा कि आप गेट खोल के अंदर आ गई। अब जाहिर सी बात है, बाहर और अंदर टेम्परेचर डिफरेंस है। बाहर आपका अबव 30 डिग्री है, अंदर आपका टेम्परेचर मेंटेन हो गया 27 पे। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपकी जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो फ्लो होगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम रीजन ऑफ फ्रॉम हॉटर रीजन टू अ कूलर रीजन, आपकी एनर्जी फ्लो, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि आपका टेम्परेचर चेंज होगा। अब वो जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, दैट विल बी सेंस्ड बाय व्हाट? कौन सेंस कर रहा है आपका? तो वो बेसिकली आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के अंदर जो थर्मोस्टेट होता है, ये द सेम हैपेंस इन रेफ्रिजरेटर एज वेल, वो बेसिकली सेंस करता है, दे सेंस। अब होता ये है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है ना, ऑफ द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जैसे ही आपका बढ़ता है, तो व्हाट हैपेंस कि इन दैट केस फिर आपका जो है ना, जो थर्मिस्टर होता है थर्मोस्टेट में, उसका रेजिस्टेंस गिर जाता है। जब उसका रेजिस्टेंस गिर जाता है तो देन व्हाट हैपेंस कि इट अलाउज द करंट टू फ्लो। अच्छा, एंड दैट इज नेसेसरी, क्योंकि अगर आपका करंट फ्लो नहीं होगा जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर आपका जो कंप्रेसर है वो टर्न ऑन नहीं होगा। That is basically what the purpose of thermistor is. It is actually sensing the change in temperature. Now it needs to give the signal to the compressor to get turned on. How it's going to turn on automatically. So for that, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपका सराउंडिंग का, थर्मिस्टर का, आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, करंट फ्लो होता है, एंड इट रीचेज अप टू अ वैल्यू विच एक्चुअली टर्न्स ऑन द कंप्रेसर। और फिर एक दफ़ा फिर आपका जो है ना कंप्रेसर टर्न ऑन हो जाता है। और टर्न ऑन का मतलब ये है कि स्लो डाउन हो जाता है, तो फिर वो इट स्टार्ट्स वर्किंग एट अ फास्टर रेट, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो जो टेम्परेचर बढ़ा होता है ना, फॉर एग्जांपल 27 से 30 हो गया, तो अब वो दोबारा 27 पे लाने के लिए वर्क करता है। सो दैट हाउ दिस साइकिल वर्क्स। तो थर्मिस्टर का काम ये होता है। तो नाउ एज व्हाट आई हैव डिस्कस विद यू कि ये बड़ा यूजफुल है, ठीक है ना, थर्मिस्टर। अच्छा, तो नाउ नेक्स्ट इज के हाउ डज द वोल्टेज वेरीज। अच्छा, थर्मिस्टर आपका जो है ना वो नहीं है। थर्मिस्टर का क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। जस्ट अ सेकंड, ये जरा एप्पल पेंसिल जो है ना, हाँ। अच्छा, थर्मिस्टर में रेजिस्टेंस आपकी कम होती है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो आपका जो शेप ऑफ द ग्राफ है ऑफ वी वर्सेस आई, वो ऐसा होता है, एंड फॉर आई वर्सेस वी इट इज, ठीक है ना। दिस शोज के आपका जो ग्रेडियंट है, एज यू कैन सी, कि जो कर्व का जो ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो रहा है, इट्स बिकमिंग लेस स्टीपर एंड स्टीपर। और जो v वर्सेस i का ग्रेडियंट होता है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो अगर ये आपका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, दैट दिस शोज कि आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे आपका आपका करंट बढ़ रहा है, ठीक है ना, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है,
तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है और करंट आपका बढ़ रहा है, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इट्स आई वर्सेस वी ग्राफ, सो इट्स गोइंग टू, अच्छा ये जो आपका फॉर थर्मिस्टर है, फॉर थर्मिस्टर द ग्राफ बेंड्स टूवर्ड्स आई एक्सिस। जैसे फिलामेंट में था ना, फिलामेंट में आपका जो ग्राफ था दैट वाज बेंडिंग टूवर्ड्स वी एक्सिस। यहाँ पे जो फॉर थर्मिस्टर जो ग्राफ है दैट बेंड्स टूवर्ड्स आई एक्सिस, टूवर्ड्स आई एक्सिस, ठीक है ना, याद रखना आप। और इसमें आपका विद द टेम्परेचर रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लें कि ग्राफ बेंड्स टूवर्ड्स करंट एक्सिस because resistance decreases. ठीक है ना। So then let's मैं इसको ना कॉपी डाउन करता हूँ, दोबारा बनाने में टाइम लगेगा। इसको यहाँ से ना ऐसे हम कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको ना पेस्ट करते हैं, ठीक है ना, पेस्ट। अच्छा इधर कर देते हैं, चलें। एंड आई एम ड्राइंग इट फॉर, मैं इसको रब ऑफ कर देता हूँ। अच्छा वैसे तो ग्राफ आपका सेम ही होता है, सही है ना, ग्राफ आपका सेम ही होता है, बस यहाँ पे ये है कि आई एम ड्राइंग फॉर लाइट इंटेंसिटी, तो यहाँ पे बेसिकली लाइट इंटेंसिटी आएगी। यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी आएगी, ठीक है ना। तो लाइट इंटेंसिटी जो है ना, तो उसका जो यूनिट होता है ना वो कैंडेला होता है, CD, ठीक होगी बात। और ये आपका रेजिस्टेंस है ओम, और ये जो आपका LDR है क्या है भाई, लाइट LDR। तो ठीक है ना, तो LDR में जो आपकी वेरिएशन है ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज सेम, बट in LDR it is with respect to light intensity। यहाँ पे ये जो LDR है it is also made out of a semiconducting material, it is also a resistor similar to thermistor, but only the difference is that it is light dependent. Thermistor is temperature dependent and this is light dependent resistor, which means that again it is used in sensing circuits, and the relationship between the resistance and the light intensity is inversely proportional, ठीक है ना। Let me write it down. For LDR, resistance is inversely proportional to light intensity. All right, and ग्राफ मैंने आपको बना के ड्रॉ कर दी, सेम एज थर्मिस्टर। और यहाँ जो आपकी वोल्टेज की जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू आई की वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है ना। इसकी बेसिकली क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है इसकी, कम होती है। अच्छा ये बात समझ आ गई सबके, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। अच्छा इसका ना नॉर्मली हम होता ये है कि हम फॉर LDR वी डोंट ड्रॉ ग्राफ ऑफ आई वर्सेस वी और वी वर्सेस आई, ठीक है ना। हम LDR के लिए V वर्सेस आई या I वर्सेस V ग्राफ नहीं बनाते, we only sketch the graph of R versus light intensity to show the relationship between resistance and light intensity, so it's like inversely proportional to each other. So हम we only sketch graph of R versus light intensity for LDR. We don't sketch graphs of V versus I or I versus V for LDR. उसकी वजह ये है कि ये
For LDR इसकी जो रेजिस्टेंस वेरी हो रही है, LDR की जो रेजिस्टेंस वेरी हो रही है, दैट इज नॉट ड्यू टू टेम्परेचर। LDR जो है उसकी जो रेजिस्टेंस वेरी हो रही है, दैट इज नॉट ड्यू टू टेम्परेचर, दैट इज ड्यू टू दी हाउ मच लाइट इज इंसिडेंट अपॉन इट। तो जितनी लाइट आपकी इंसिडेंट होगी LDR पे, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी ऑन LDR, उतनी आपकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। और जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे LDR पे, उससे आपका जो है LDR के टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं आता, इट रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। तो सही है ना। तो जो V वर्सेस I ग्राफ होता है या I वर्सेस V ग्राफ होता है फॉर LDR, दैट इज नॉट अ वेरी शार्प कर्व, बट इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे भी, दैट इज बीइंग इंसिडेंट ऑन LDR, तो उससे LDR के टेम्परेचर पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। तो या बट लाइट इंटेंसिटी अगर जैसे है, तो लाइट इंटेंसिटी जो है जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। तो होगा तो वो कर्व ही, बट नॉट एज मच सिमिलर टू थर्मिस्टर, थोड़ा सा लेस कर्व्ड, मतलब ग्राफ होगा लेस कर्व्ड होगा। ठीक है ना, लाइक दिस। क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है ना LDR का, वो इट्स नॉट गेटिंग चेंज सिग्निफिकेंटली, दैट्स व्हाई। ठीक है। अच्छा, सो आई हैव ड्रॉन द ग्राफ फॉर LDR, आई होप दिस इज क्लियर। और इसमें जो है under dark conditions, the light intensity is low, so resistance is high, while current is low. All right. And under bright conditions, when light intensity is high, so the resistance is low, and और ये light sensor ये उनमें यूज होता है, current is low, current is high, sorry। ठीक है बात। तो लाइट सेंसिंग सर्किट्स होते हैं, उनमें आपका ये LDR यूज होता है। जैसे कि लाइट गेट्स हैं आप, ठीक है ना, और लाइट गेट्स आपके एयरपोर्ट पे भी इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है ना। या जब कभी आपने एक्सपेरिमेंट करना होता है इन्वॉल्विंग स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है एंड यू आर लाइक ट्राइंग टू मेजर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसमें आप यू नो हाउ यू टू मेजर द स्पीड, यू मेजर द डिस्टेंस, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए how much time it takes for the so light gauge is one of the real life example where the LDR is used. It's a light sensing circuit, and it's used in a light sensing circuit. ठीक है ना? Then we have variable resistor. What about variable resistor? Fixed resistor, filament, thermistor, LDR. Now we have variable resistor. What about variable resistor? So let me try drawing a diagram for a variable resistor. So alright, मैं थोड़ी सी drawing, although I'm very bad at drawing, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। और ये there is a slider,
right, there's a slider, and over here this is basically I out, and this is I in. All right, this is I in, and these are the coil of wire that is wrapped around the conductor. All right, we call this also as rheostat. Also call it as a rheostat. And so by moving by moving the slider, back and forth, the length of wire and hence the resistance. Can be changed. So for a variable resistor, resistance is actually directly proportional to the length of wire through which the current flows. All right, if you're gonna put up the slider over here, so it's going to flow over a shorter length and it's going to move out of the circuit. While you move the slider right towards the other end, for example, you move it at this point, at this position. So now the current is going to flow along a greater length of wire and hence is going to experience greater resistance. All right. So resistance is directly proportional to length of wire. That's for the variable resistor and rheostat. All right. Then we have diode. It's made out of semiconducting material. All right. So now let me mention this. It is an electronic component which allows current. ठीक होगा. अच्छा, और इसका जो सिंपल है वो भी मैंने आप को शो कर देता हूँ. वैसे तो खैर मैंने शो कर, तो ये आप ऑलरेडी कर देंगे. तो अगर थोड़ा सा डाल देंगे थोड़ा क्लियर हो जाए. और इसका मैं ग्राफ भी स्केच कर लेता हूँ. इसका ग्राफ जो है ना हम ड्रॉ करेंगे फॉर आई वर्सेस वी. किधर कर देता हूँ कि इसका जो ग्राफ है ना वो क्या होता है कि अगर आपकी जो है
मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आपका जैसे जब आई है और ये आपका वोल्टेज और ये नेगेटिव वोल्टेज होगा, देन इन दैट केस आपका जो है करंट कोई फ्लो नहीं होगा। यानी कि अगर आपने रिवर्स डायरेक्शन में डायोड इंस्टॉल किया है या आपके लिए नेगेटिव वोल्टेज है, तो फिर देखें आपका करंट जो है ना वो जीरो है। करंट क्या है? जीरो, नो करंट फ्लो। और अगर आपने जो है वो अच्छा, अगर डायोड के थ्रू करंट फ्लो करेगा, देन वी से दैट द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड सही से लिख देता हूँ। और अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा आपका, if the diode is not allowing the current to flow, तो इट इज कॉल्ड एज रिवर्स बाइस। इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स बाइस। ठीक है ना? उसे हम कहते हैं रिवर्स बाइस। अगर द डायोड इज नॉट अलाउइंग द करंट टू फ्लो, अगर इस तरीके से इंस्टॉल्ड है कि इट्स नॉट अलाउइंग द करंट टू फ्लो, तो फिर हम कहते हैं कि डायोड क्या है? रिवर्स बाइस। और अगर वो अलाउ कर रहा है करंट को फ्लो करना, तो हम कहते हैं डायोड फॉरवर्ड बाइस। तो अगर वो अलाउ कर रहा होता है करंट को, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा? यानी कि अभी अगर वोल्टेज जीरो है एंड इट इज इंस्टॉल्ड करेक्टली, तो फिर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। अदरवाइज वैसे होता ये है कि इफ इट इज इंस्टॉल्ड इन अ वे के इट इज अलाउइंग द करंट, तो फिर जो भी वोल्टेज की वैल्यू होती है ना, तो ग्राफ ऐसे एक्सटेंड होता है आगे, ऐसे लाइक दिस। बट दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन द ग्राफ इज फॉर एन आइडियल डायोड। ये जो मैंने आपका ग्राफ ड्रॉ किया इज फॉर एन आइडियल डायोड। कि अगर आपका वोल्टेज नेगेटिव है, अगर रिवर्स डायरेक्शन में आपका इंस्टॉल हुआ है, अगर रिवर्स कनेक्ट हुआ है आपका डायोड, तो फिर आपका जो है करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। और अगर आपका फॉरवर्ड कनेक्ट हुआ है डायोड, पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो वी से दैट दिस कनेक्शन इज फॉरवर्ड कनेक्शन। तो इन दैट केस फिर आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक हो ये बात? और डायोड अलाउ करता है करंट को, वी से दैट डायोड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। और अगर डायोड करंट अलाउ नहीं कर रहा, वी से दैट डायोड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल। ठीक है ना? तो इधर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि पहले मैं दो वो बना देता हूँ जल्दी से। ओहो, एक मिनट में इसको पूरा जस्ट अ सेकंड। क्या हो गया इसको? हैंग हो गया। आई थिंक ऑल ऑल ऑफ अ सडन जो है ना, आई थिंक मैं एक मिनट गुड नोट्स को रीस्टार्ट कर देता हूँ। दो मिनट की।
ये मैं ठीक है, ये मैं 2 सर्किट्स मैंने ड्रॉ करने हैं। स्टैंडर्ड एक मैं इधर कर देता हूँ, एक मैं इधर कर देता हूँ, एक मैं इधर कर देता हूँ। ठीक होगी बात। यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं डायोड। ठीक है, यहाँ अटैच कर देते हैं लैंप। ठीक है, और ये आपका स्विच हो गया, मतलब ये बैटरी हो गया। बैटरी के टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड आई एम कनेक्टिंग इट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड, नेगेटिव टर्मिनल connected to the negative terminal of the diode, so it is going to conduct electricity, is going to allow the current to flow. अच्छा, मैं जो डायग्राम पे करंट की डायरेक्शन मार्क करूंगा, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ऑल्दो करंट आपका फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से होता है, बट विल बी मार्किंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है ना, तो ये आपका फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपका करंट है I एंड इट्स गोइंग टू cause the lamp to glow. ठीक है ना, ऑन हो गया। चल, अब यही काम मैं करता हूँ इधर। ठीक है, अच्छा नहीं, मैंने टर्मिनल रिवर्स कर देता हूँ। अब जो है आपका करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज आई हैव बेसिकली कनेक्टेड द डायोड इन द रिवर्स डायरेक्शन, negative terminal with positive terminal, positive with negative, so now the diode will not allow the current to flow through it, and so it will not, we'll say that diode does not conduct electricity, and all right, then the lamp will be off. It will be off. All right. In reverse biased, positive is connected to negative and negative is connected to positive. While in forward biased, positive terminal is connected to positive while negative is connected to negative. Is that clear? Now, when the diode is forward biased, the resistance is minimum because it's allowing the maximum current to flow. All right. When the diode is forward biased, so it won't offer any resistance. The resistance is going to be 0 ohms. It will allow all the current to flow through it. No resistance at all. While when it is reverse biased, so it's going to offer maximum resistance. It won't allow any of the current to flow. That means there won't be any limit for the value of the resistance. It's going to be maximum. It's going to be infinite. Is that clear? So, is that clear to all of you regarding these different types of materials? In fact, different electrical components: variable resistor, diode, LDR, thermistor, fixed resistor, lamp. Is that clear to all of you? Just let me know in the chat, please, or thumbs up, whatever. Okay, that's great. Now, one last thing that we're going to discuss today is uh, that is factors affecting resistance.
All right, let me mention over here quickly factors affecting resistance. All right, so the number one factor that affects the resistance is the length of conductor. All right, so resistance is directly proportional to the length, as what we discussed in variable resistance. It applies to all kinds of all conductors. Resistance is directly proportional to the length of the conductor, be it a semiconductor or a conductor, doesn't matter. The greater the length of the conductor, um, the greater the resistance is going to offer. So longer wires, longer wires create longer wires offer more resistance in the flow of electrons. That makes sense. All right. Okay, just a second. Okay. Now the second factor that affects the resistance is cross sectional area. Cross sectional area. All right, and resistance is inversely proportional to the cross sectional area. All right. So thicker wires have thicker wires means that they have a greater cross sectional area. Uh, I mean to say like this, if this is a wire, so this area is a cross sectional area. So the thicker this area is, all right. So wires, thicker the wire, the greater the cross sectional area it has, and thicker wires offer less resistance than thinner wires. Now there's a reason behind it. I'm gonna discuss with you that reason later on. That's not something part of the curriculum, but yeah, because we don't have time right now, so I'm gonna discuss that later. Why is that so? That the thicker wires offer lesser resistance than thinner wires. But yeah, that's a fact. So cross sectional area and resistance, they are inversely proportional to each other. So thicker wires, that means a greater cross sectional area. Uh, wires having greater cross sectional area or thicker, they offer less resistance than thinner wires. Is that clear? Now, the third is uh, temperature. That is what you know. Temperature. All right, and so temperature is directly proportional. Resistance is directly proportional to temperature. Right? When temperature increases, when temperature increases, the vibrations of atom, the vibrations of atoms increases. They create more hindrance. They create more hindrance in the flow of electrons. All right.
Now, if I combine all these three conditions, if I combine all these three relationships, I will get as resistance as directly proportional to temperature and length, while inversely proportional to cross sectional area. All right. Now, what we do is we don't write down over here. We don't include over here the this quantity of temperature, but instead of this, we include another quantity which is called as resistivity. All right. So I'm going to remove this proportionality sign and this temperature, and I'm going to put up equal to. All right, and I'm going to include a quantity called as resistivity. All right. So just like we have spring constant, that is a property associated with the spring. So resistivity is a property associated with just like charge is a property. So resistivity is a property associated with each material, every material. So it's a resistivity, and if you look at this symbol, it is similar to that of density. And you call this, it's a Greek symbol, you call this as rho, rho. So this the symbols are the same for both. So resistivity, it's a material property. All right, and it is actually affected by the resistance. Resistivity is affected by resistance. All right, resistivity is affected by resistance. All right, so we're going to be using this equation, not this one. This is what actually I derived by looking at these relationships. But the final equation for resistance is in terms of the properties of material. Now, these are all basically the properties of material. Length is a property associated with material. Cross sectional area is a property associated with material. Resistivity is a property associated with the material. So this is the equation for R. You had one equation for R that was as a ratio of the potential difference in the current. But you have another equation for R, and that is defined in terms of the property of the material. All right, and so this is the equation that we're going to be using, not this one. All right. So okay, that's it. We have covered up the concept of resistance. Now we shall discuss uh, circuits, inshallah, in the next class. And just a second, I'm going to answer the questions. Okay, so okay. So could you explain the equation part again, please? Okay. Uh, this is what you're asking for, or have you understood now? So I have just combined all these three relationships. So they are both directly proportional. So I just express that as a product. This inversely proportional. I wrote it in the denominator. Now what I did was that in order to convert this equation, I removed this proportionality sign equal to, and then in place of t, I replace it with a quantity called resistivity. Now, students, you need to understand that
this is not, the derivation for this equation is not being discussed with you. This is not how we derive this equation. All right, what we did over here is not the derivation of this equation. However, you can understand. All right, however you can understand this equation from over here, but when you go on to derive the equation for resistance, so this is not how you derive. All right, there are other steps as well that are part of it, so I'm not going to discuss that, but with this you must have got the idea of this equation. All right, I have just told you that uh, we don't include the temperature, but rather we include a property of the material, because temperature is not the property. Remember, temperature is not the property of a material. We want to express resistance in terms of only the properties of material. So that's why we replace T with the property of a material that is affected by temperature. So that property is called as resistivity. It's a material property, just like we have a spring constant, that's a material property. So temperature is not a material property. So in order to replace it, we replace it with a property that is affected by temperature, that is resistivity. I've written down the symbol, and it increases with the resistance. It increases with the temperature. All right. So is that clear now? And we're going to be using this equation. How are we going to be using this equation? That's something I'm going to tell you in the while we're going to be solving the questions. So I'm going to tell you that how we're going to be using this equation. All right. But as of now, I hope everything is understood. Now, in the next uh, topic, in the next class, I'll be doing some questions with you regarding whatever we have studied till now, and then we have two classes left. So in one of the class, we're going to be discussing some questions related to what we have learned up till now, and in the second class, we're going to be starting off with the concept of circuits. So I'm going to tell you that the two types of circuit, parallel and series, and how the resistance, current, and voltage they vary in both of the circuits. All right, inshallah. We'll meet in the next class. Thank you so much. Allah Hafiz.